formula, like this formula has already been taught to you all. Okay, this formula has already been given. What was that? I'm taking it over here. So 2 sin a cos b so yes, so these formulas has already been taught, like 2 sin a cos b will give you sin of a plus b. Always remember, then if sin cos is coming, if first one is sin and the second one is cos, then always remember that the sin operation will be there, or if cos sin is coming, then also it will be sin operation only. Always remember, what you have to remember, that if you are getting with in the form of sin and cos, okay, if you are getting in the form of sin and cos, someone has entered, I guess. Okay, so if you are getting in the terms of sin and cos only, then what you have to do, you have to take the sine functions, that is sin of a plus b plus sin of a minus b. If you are getting sin a cos b, if you are getting cos a sin b, then there will be what? There will be difference of the sine functions, that will be the difference of the sine functions. So all these formulas, whatever you are seeing, that will be applicable. Okay, that will be applicable. So these formulas has already been explained. If cos is coming, then cos of a plus b plus cos of a minus b. Okay, and if you are getting sin, then it will be definitely minus. It will be cos function only, but it will be minus between these two. Is that clear? This has already been taught, I guess. Remember, this has already been taught. Yes or no? You Yes, can sir. mute yourself. Okay. Yes, sir. Moving to the next part, triple angle formula. Triple angle formula, it is also very easy. I will give you the trick how to remember. Always remember that the sine function is very friendly, that I have already told you, right? The sine function is very friendly. So if the sine function is very friendly, then what does it says? It says that the number of times that it is with the angle, number of times that is with the angle, number of times will be shifted to the left of the angle. That is, left of the angle would be what? 3 sin a. Then always remember, in both the cases there is a minus sign only, so keep it in your mind. So the format, that means how will you learn, how will you remember? This is the only format, that sin 3a would be, the 3 would be shifted from the left of the side of sine angle, that is 3 sin a minus 4 times of sine cube a. I am not going to discuss the derivation part, because you have already done in your classes, that means in your 11-12 portion. So I am not going to do that one. Someone has entered? No. Okay, so that part has already been taught to you, so I am not entering to that part. Cos 3a, what is the formula of cos 3a? That would be the inverse, that means whatever the sin 3a, it would be the inverse. I have already told you that the cosine of angles are not friendly to user, that means not friendly to us. Okay, so it is not user friendly. What it does the opposite work of sine. So what how will you remember? You will be remembering in this way, that the 4 times of cos cube of angle minus 3 times of cos angle a. Okay, and tan 3 theta or tan 3a would be the what? It would be sin 3a by cos 3a,
a, and whatever the value you are getting, that is the answer. That means 3 tan a minus tan cube a by 1 minus 3 tan a square a. Okay, we are deriving these two values. Is that clear? And you don't have to remember cot part. You can leave the cot part, because whatever the value you are getting, always remember that if you are given cot, even if you are given cot, you have to convert it by 1 by tan a 3a. That's it. Is that clear? So you don't have to remember tan, cot, always just remember tan. If you remember like sin 3a, cos 3a, it is easy to remember tan 3a as well. Then there is sub multiple angles, but before that, double and half angle formula. Double and half angle formula. For sin 2 theta, how we get double angle formula? This you have already learned, no, like sine of a plus b, sine of a plus b. When a and b becomes equals to theta, a and b becomes equals to theta, so what we can write? We can write theta plus theta, which is nothing but sine 2 theta. Is that clear? Is that clear? Tell me. Yes, now it is clear. And now what was the formula? Try to memorize that sine a cos b plus cos a sine b, right? That was the formula. For this part here, it would be sine theta cos theta plus cos theta sine theta. So it is same only. So sine theta cos theta plus sine theta cos theta, it will give you 2 times of sine theta cos theta. Theta was missing over here, so it will be 2 times of sine theta cos theta. Is that clear? Tell me. Yes, sir. Is that clear to everyone? The next part, cos 2 theta would be just try to put in that way, like cos 2 theta, like cos a plus cos b, that means cos of a plus b, in that format only. So it was cos a cos b minus sin a sin b, it was like that only, no? Remember that part? Cos a cos b minus sin a sin b, it was the formula, right? Do you guys remember, or you forgot? What is it? Yes, sir, I remember. Cos of a plus b, I am saying the cos of a plus b, what was the formula? Do you guys remember? Cos a cos b minus sin a sin b. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Do you guys remember this formula, or Yes, you sir. forgot? बोलोगे सर इतना दिन क्लास हो जाएगा तो कैसे याद रहेगा, है ना? तो फिर तो दिक्कत वाली बात है हमारे लिए भी, तो याद तो रखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है? So this is the format, this is the formula that we have discussed already in the classes. So it will be cos square theta minus sin square theta, or you can write it down 2 cos square theta minus 1, or you can write it down 1 minus 2 sin square theta. जब like half angle के format में जब आते हैं ना, तो you can see for this part like 2 sin square theta. So if you are taking sin square theta, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 minus cos 2 theta, 1 minus cos 2 theta, and it is 2 times, so 2 is divided over here. That's why 2 is divided. So the I am like zoom in. So it becomes the formula 1 minus cos 2 theta by 2. इस फॉर्मूला का बहुत एप्लीकेशन है, बहुत सारे क्वेश्चंस अभी हम लोग सॉल्व करेंगे. वी आर गोइंग टू सॉल्व इट आउट एंड वी विल सी दैट दिस questions or these formulas is having applications in lots of questions. Like for whatever the question we will solve, in the most of the questions we can able to see that formula. In the same manner, so sin theta by 2 will be what? Plus minus 1 minus cos theta by 2. In the same manner, cos square theta will be what? Cos square theta would be 1 plus cos 2 theta by 2, and in the same manner you can write it down, cos theta by 2 will be written as plus minus root over. Please note it down this part. You guys have understood, I guess. Tan 2 Yes, theta, tan 2 theta would be in the same format. Remember, like tan a plus tan b by 1 minus tan a into tan b. Remember that formula in the last class that has been taught. Yes, sir. So this formula is only derived from that formula only, the sum of the two angles. Okay, so theta plus theta, it will give you that part.
So copied. Sir, I'm taking a snap of it. Okay, you are taking a snap. Okay. What about others? What others are doing? স্যার এগুলো মুখস্থ আছে। আচ্ছা মুখস্থ আসছে, তাহলে তো ভালো। এইটা যদি মুখস্থ থাকে তাহলে কোশ্চেনটা সলভ করতে খুবই ইজি হবে, তাই তো? একদম স্যার। Okay, so moving to the next slide. Done, right? Yes sir. Okay. Yes, sir. For this part over here we can see, like if we are taking in the form of tan, like tan 2 theta would be what? Tan 2 theta would be what? Tan 2 theta will give you sin 2 theta by cos 2 theta, right? So if you are writing sin 2 theta in respect of tan, if we can write sin 2 theta or cos 2 theta in respect of tan, then sin 2 theta is written as 2 tan theta by 1 plus tan square theta. Okay, and cos 2 theta is written as 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta. These formulas you should keep it in your mind, so that it should be very easy for you guys to solve it or find out the answer. Okay, in the same manner, like we can solve it or we can take the tan 2 theta formula, which is 2 that means divide this thing, like sin 2 theta by cos 2 theta, and 1 plus tan square theta will be getting cancelled, and you will be getting what? 2 tan theta by 1 minus tan square theta, right? That's what you are getting. So these are the formulas. These three formulas you should keep it in your mind. These three formulas you should keep it in your mind. Okay, and these formulas has already been discussed. Okay, moving to the next part. Please note it down first, then we will be moving to the next part. I will be discussing the past year questions, like what are the types of questions that usually comes at the time of examinations, that we will discuss. Okay, done, copied. Yes, sir. चलिए Yes, हो sir. गया. Moving to the next part. चलिए, ये एंगल्स देखिए, सब मल्टीपल एंगल्स, किसी भी, अभी तो मैं डेरिवेशन करने तो मैं बैठूंगा नहीं, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, कोई भी एक एंगल, यदि हम लोग किसी भी एक एंगल का वैल्यू याद रख पाते हैं, यदि हम किसी भी एक एंगल का वैल्यू याद रख पाते हैं, देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द रेस्ट ऑफ द एंगल्स. ध्यान से समझिए, साइन का 18 डिग्री यदि आपको याद रह जाए, ठीक है, जो कि वैल्यू होता है √5 - 1/4. ध्यान से समझिएगा. तो क्या cos 18 निकालना पॉसिबल है, हाँ या ना, बताओ? Yes तो sir. जाहिर सी बात है, यहाँ पे आप क्या Yes, sir. करोगे? 1 माइनस 1 minus sin square 18 डिग्री, है ना? तो उसका जब आप कैलकुलेट करने बैठोगे, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का क्या फंडा है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का फंडा यही है कि जितना हो सके हम लोग वैल्यूज़ को डेराइव करने से बचें, राइट? जितना हो सके हम लोग वैल्यूज़ को डेराइव करने से बचें. तो वी वोंट बी डेराइविंग द वैल्यूज़ एट ऑल. व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू लर्न and what trick it should follow, what trick we should follow. ध्यान से समझिएगा कि कोई भी एक एंगल यदि याद रख पाते हो, तो मान लीजिए कि यदि आप भूल गए वैल्यूज़, तो आप डेराइव कर सकते हो. बट what I am suggesting to you guys, यदि मैं रहता और एस्पायरेंट रहता, मैं NDA एस्पायरेंट रहता, तो मैं क्या करता? I would definitely learn these values, and that what I will tell you to do so. So sin 18 डिग्री का वैल्यू अब ध्यान से समझिए किसका इक्वल होगा. तो sin 18 डिग्री जो है वो किसके बराबर है? तो वो cos 72 डिग्री के बराबर है, हाँ या ना? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल याद कीजिए, होगा कि नहीं? Yes, sir.
आपका क्या हो जाएगा, साइन 18 डिग्री शुड बी इक्वल टू साइन 18 डिग्री शुड बी इक्वल्स टू कॉस 72 डिग्री. If you are like learning the value, if you learn the value of cos, suppose cos 18 डिग्री, तो ये cos 18 किसके इक्विवेलेंट होता होगा, तो वो हो जाएगा sin 72. यस और नो, sin 72 हो जाएगा, राइट, sin 72 डिग्री हो जाएगा. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लर्न दिस वैल्यू, सो दैट इट वुड बी इजी टू आइडेंटिफाई. अब इसी से बेस्ड एक क्वेश्चन भी करेंगे, इसको पहले नोट डाउन कीजिए. तो उसी तरह यदि आप इसका वैल्यू यदि आप याद रख पाते हो, यदि आप इसका एंगल का वैल्यू याद रख पाते हैं cos 18 डिग्री, तो tan निकालने के लिए क्या करते हैं, tan 18 निकालने के लिए क्या करोगे, tan 18 निकालने के लिए क्या किया जाए, sin by cos, sin 18 बाय cos 18 है cos ना? 18. ठीक, बस उन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दीजिएगा, जो आएगा, कहाँ चला गया, जो आएगा इन दोनों का वैल्यू का डिवाइड, जो आएगा फिर आपका ये tan 18 डिग्री का वैल्यू है, ये tan 18 डिग्री का वैल्यू है. ठीक, इसे ज़रा नोट डाउन करें. प्लीज़ नोट डाउन दिस टेबल फर्स्ट. कितने आज 15-20 लोग ही ज्वाइन किए, बाकी लोग कहाँ हैं, वे आर द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. सर ऑनलाइन में इतने ही ज्वाइन करते हैं. अच्छा, ऑनलाइन में इतने ही करते हैं, ओके, चलिए. एनडी और सीडीएस दोनों मिला हुआ है ना इसमें? यस सर. Yes sir. सीडीएस Yes, के sir. कितने लोग हैं, रेज योर हैंड. Sir, I'm सर आई from एम फॉर ND. सीरियस. एक और, Sir, I'm for CDS. ओके, Sir, CDS. Sir, मैं 4, एनीबॉडी एल्स, Sir, I'm also serious. okay, 5, anyone else, okay, 5 स्टूडेंट्स आर फ्रॉम सीडीएस. तो सीडीएस का जो क्वेश्चन का लेवल है वो बहुत इजी है, ठीक है, बताते हैं कैसे और क्या इजी है. इसे पहले नोट डाउन कर लीजिए आप लोग. ये हो गया है ना? Yes sir. चलिए आगे बढ़ते हैं. Yes, तो sir. इसके डेटा को आपको दिमाग में रखना है, ठीक. अब यदि मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल की तरह यदि देखा जाए, और क्या है, अच्छा, जनरल सॉल्यूशन जो है मैं नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करूंगा. मैंने बोला भी था कि जनरल सॉल्यूशन जो है आपका इस चैप्टर में नहीं आएगा, नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि सीडीएस वालों का इससे कोई लेना देना नहीं है. सो वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट मीन्स नेक्स्ट क्लास ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है. एक और रूल है वो आप देख लें, साइन रूल. अब साइन रूल क्या कहता है कि यदि हमारा ट्रायंगल है, अब इतना मोटा ट्रायंगल बनेगा तो कैसे होगा. सपोज ये हमारा ट्रायंगल है, चलिए अब इतना ही बड़ा हो रहा है. ये हमारा वर्टिसेस ए, बी एंड सी है, ध्यान से समझिएगा. वर्टिसेस ए, बी, सी यदि रहता है, then what we are going to do for finding out the sine angle. for sine angle तो ये एंगल A है, तो एंगल A का जो ऑपोजिट एज होगा या तो ऑपोजिट साइड होगा उसे साइड A कहेंगे. क्या बोला मैंने, एंगल A का ऑपोजिट साइड जो होगा उसे साइड A कहेंगे. उसी तरह एंगल B का ऑपोजिट साइड को साइड B कहेंगे, और एंगल C का ऑपोजिट साइड को क्या कहेंगे, एंगल C. इस फॉर्मेट में पहले आपको दिमाग में रखना है. ट्रायंगल को किस फॉर्मेट में आपको रखना है दिमाग में, इस तरह से, ठीक. इस तरह रखने के बाद साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइंस ऑफ द एंगल्स अपोजिट टू देम. इसका मतलब क्या है कि a बाय साइन ऑफ एंगल a का जो वैल्यू होगा, उसी तरह b बाय साइन ऑफ एंगल b का जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा. प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि कोई भी दो रेशियो क्या हो जाए,
इक्वल हो जाए, या कोई भी 3 रेशियो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। जब रेशियोज इक्वल होते हैं तभी ना कहा जाता है प्रोपोर्शनल। ये चीज़ पता है आप सबको या नहीं पता है, बोले? यस सर। पता है ना। तो सारे एंगल्स, ये वैल्यूज जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। दैट मीन्स इन दोनों का वैल्यू यदि प्रोपोर्शनल है तो यानी एक कांस्टेंट कोई वैल्यू लिया जा सकता है विच इज के, ठीक है। मोर जनरली इफ आर बी द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, यदि सर्कम सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप देखते हो ट्रायंगल एबीसी का, इफ यू आर लाइक गिवन the values of side A, B, C, and if you are given all the angles that means angle A, angle B and angle C, so you can easily find out the radius from there, and this would be the circumradius. This radius is known as circumradius. Okay, this radius is known as circumradius. That means triangle is circumscribed by a circle. Okay, इसे जरा साइन रूल आप नोट डाउन करो, प्लीज नोट डाउन दिस रूल फर्स्ट, फिर आते हैं कोसाइन रूल। ओके, नोट इट डाउन दिस वन। साइन रूल पूछता है बहुत कम, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, बट दे माइट कैन आस्क यू क्वेश्चंस, ठीक है। इफ द टू एंगल्स आर गिवन एंड वन ऑफ द साइड इज गिवन, will you be able to find out the other side? Tell me. Okay, suppose all the 3 angles are given and any one of the side is given, will you be able to find out the other 2 sides? Yes sir. Yes sir. जाहिर सी बात है, आप इसमें पुट करेंगे और निकाल लेंगे, साइड बी भी निकल जाएगा आपका, साइड सी भी निकल जाएगा, यदि आपका एंगल दिया हुआ है तो। if the angle is given then only. Okay, चलिए इसे नोट डाउन कर लें। हो गया, कॉपीड? हाँ सर। विल आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? द नेक्स्ट वन इज कोसाइन रूल। कोसाइन रूल को कैसे दिमाग में रखना, ध्यान से समझिएगा। यदि एंगल आपका फाइंड आउट करना है, कॉस ऑफ एंगल ए, तो मैंने तो बता दिया कि एंगल का जो वर्टिसेस होगा उसका ठीक अपोजिट वाला जो साइड होता है वो साइड ए होता है। तो उसी तरह बी का, साइड बी का, एंगल बी का अपोजिट साइड हो जाएगा साइड बी, एंड इन द सेम मैनर एंगल सी का हो जाएगा साइड सी। अब करना क्या है, तो अब आपको एंगल निकालना है। जब एंगल निकालना है तो शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ कि शॉर्टकट आपको याद कैसे रखना है। यदि कॉस ऑफ ए निकालना है तो कॉस ऑफ ए का अपोजिट साइड क्या हो जाता है, तो साइड ए हो जाता है। तो करना क्या है, तो करना यह है कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc। ठीक, मतलब जो हमारा एंगल हमने एज्यूम किया उसका अपोजिट वाला जो साइड है, एंगल ए का अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, साइड ए। सो साइड ए का स्क्वायर जो होगा माइनस में होगा, और बाकी जो 2 एंगल हैं वो स्क्वायर में होंगे, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 एंगल्स। ठीक है, उसी तरह इसका भी याद कर लें, इसका भी याद रख लें, कोई एक एंगल याद रह जाएगा, बाकी सारे याद रह जाएगा। शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट यही है कि जो एंगल हमारा था दैट मीन्स कॉस बी यदि पकड़ते हैं तो कॉस बी का अपोजिट वर्टिसेस में कौन सा एंगल है, दैट मीन्स सॉरी कॉस बी का दैट मीन्स बी वर्टिसेस पे अपोजिट साइड कौन सा साइड है, तो साइड बी है तो बी का स्क्वायर माइनस में चला जाता है। ठीक है, ये शॉर्टकट है याद रखने का, कोसाइन रूल। चलिए इसे याद रखें, इसे दैट मीन्स नोट डाउन करें। तो थोड़ा सा मल्टीपल एंगल्स का कुछ है क्वेश्चंस मैं करवा दे रहा हूँ, मतलब कुछ फॉर्मूलाज 2-4 और मैं दे दे रहा हूँ ताकि आपको याद रह जाए। ठीक है, क्योंकि अभी उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये हो गया। यस सर। यस सर। चलिए, तो हमने अभी किसका किसका फॉर्मूला दिया आपको,
cos 2 theta एंड sin 2 theta tan 2 theta। ओके, तो ये फार्मूलाज हमने डिस्कस कर लिया है, राइट। चलिए एक क्वेश्चन, अच्छा ये फार्मूला जो है प्रोजेक्शन फार्मूला है। प्रोजेक्शन फार्मूला का जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछता नहीं है, लेकिन दिल मान नहीं रहा है, लिख लो इसे। इसका एप्लीकेशन यदि किसी क्वेश्चन में करते करते यदि हमें दिख जाएगा तो मैं बता दूंगा कि ये क्वेश्चन में इस फार्मूला का एप्लीकेशन है, लेकिन इसका दिखता नहीं है, ठीक है। प्रोजेक्शन फार्मूला इज़ नॉट नीडेड इन योर सिलेबस आई गेस, ठीक है। ये ज़्यादातर जेई मेंस के क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो जेई मेंस का लेवल तो वैसे भी थोड़ा सा टफ ही होता है, पता ही होगा आप सबको। क्या कह रहा है, साइड ए इज इक्वल्स टू बी टाइम्स ऑफ कॉस सी एंड सी टाइम्स ऑफ कॉस बी। मतलब यहाँ पे एंगल ए का लेना देना नहीं है यदि हम साइड ए कंसीडर कर रहे हैं। साइड बी कंसीडर कर रहे हैं तो हमारा सी टाइम्स सी साइड होगा, लेकिन फिर कॉस ऑफ एंगल ए होगा, और ए साइड होगा तो कॉस ऑफ एंगल सी होगा, ठीक है। और उसी तरह सी साइड लेते हैं, सी साइड का यदि वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, ए टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ एंगल बी एंड बी टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ एंगल ए। ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला पूछेगा नहीं और एप्लीकेशन बहुत ही कम है इसका, फिर भी यदि कहते हैं ना वो किस्मत जब खराब रहता है तो क्या होता है, ऊँट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट जाता है। तो बस भगवान ना करे आपका किस्मत खराब हो इन मामलों में, ठीक है। चलिए तो ये फॉर्मूला थोड़ा नोट डाउन करें, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन की बारी आती है। क्वेश्चन से पहले मैं जस्ट दो फार्मूला और दे देता हूँ कि tan का फार्मूला हमने क्या देखा अभी। tan का फार्मूला हमने देखा tan के रेस्पेक्ट में। यदि हम कहें कि tan थीटा बाई 2 निकालिए, या tan थीटा बाई 2 का वैल्यू यदि पूछ दिया जाए, निकालने कह दिया जाए, तो उसका फार्मूला होता है cos के रेस्पेक्ट में क्या होता है, रूट ओवर 1 प्लस cos थीटा, उल्टा लिख दिए माइनस, शुरू में माइनस होगा नीचे प्लस, ठीक है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इसका जो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का जो वैल्यू था, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का वैल्यू था, वो नीचे और ऊपर पुट कीजिएगा ना तो ये आ जाएगा कितना, tan थीटा बाई 2, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले 2 थीटा हो सर, हाँ बोलिए सर 2 थीटा होगा या थीटा होगा? सॉरी यहाँ पे थीटा बाई 2 लिया तो हमने थीटा होगा, फिर थीटा बाई 2 हमने पकड़ा है तो सिर्फ थीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। और tan को कॉट को अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं पहले भी मैंने बोला, ठीक है। ये चीज़ मैंने पहले भी बोला, तो ये चीज़ आप याद रखो, ये चीज़ मैंने नहीं लिखवाया था, ठीक है। और साइन और कॉस का तो ऑलरेडी आपको पता ही है, मल्टीपल वाला, सब मल्टीपल वाला भी पता ही है, tan का सिर्फ नहीं दिए थे। चल डायरेक्ट मैं क्वेश्चन के पास आता हूँ। पहला क्वेश्चन ये नोट डाउन हो गया ना आप लोगों का, कर लिए हैं? यस सर। मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, चलो जल्दी सॉल्व करके बताओ कितना आंसर। एनडीए 2019 का क्वेश्चन है ये, सॉल्व इट आउट। साइन 2 थीटा, कलर मैं चेंज कर दूँ, साइन 2 थीटा जो है कॉस 3 थीटा के बराबर। थीटा का रेंज उसने दे रखा है कि 0 से लेकर 90 डिग्री तक है। व्हाट इज साइन थीटा, टेल मी हाउ टू प्रोसीड दिस क्वेश्चन, एनीबॉडी कैन से दैट। इस क्वेश्चन को प्रोसीड आप कैसे करोगे, इफ यू आर गिवन इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, हाउ टू प्रोसीड, क्या किया जा सकता है बताइए। सर बाय द एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला, व्हिच सर sin 2 theta, हाँ sir 2 sin theta cos theta and right sin 3 theta is 3 sin theta minus 4 sin cube theta, then take common sin theta, so sir there will be in the निकालना है ना। अच्छा Yes, sir, क्या both, ऐसे आप कर सकते हो, देखिए तो sin 2 थीटा, और यहाँ पे लिखा sin ऑफ 90 माइनस 3 थीटा, लिख सकते हैं क्या? यस 90 सर, माइनस 3 Yes, थीटा, sir. ये ज़्यादा इजी नहीं हो जाएगा? sir. एक बार चेक करो। सर ऑप्शन ए आएगा सर, Yes, रूट sir. ओवर 5 प्लस 1/4। अच्छा पहला ऑप्शन आएगा, चलिए देख लेते हैं। साइन गेट्स कैंसिल्ड,
साइन साइन गेट्स कैंसिल, तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू 90 माइनस 3 थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 18 डिग्री, यानी सर ऑप्शन बी, सर ऑप्शन बी। एग्जैक्टली साइन 18 डिग्री का वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया, √5 - 1/4, ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द आंसर। कितना देर लगेगा, 1 मिनट लगेगा ये सब क्वेश्चन में, बताइए क्या ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने में 1 मिनट लगेगा, टेल मी, नहीं ना, लगना भी नहीं चाहिए मुझे लगता है। यस सर। ये सब क्वेश्चन में सॉल्व करने में आप लोगों को 1 मिनट नहीं लगना चाहिए, ठीक है, दैट्स व्हाट आई थिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए ये क्वेश्चन बताइए क्या कहता है, प्लीज चेक। जीरो होगा सर 0 सर, cos 90। एग्जैक्टली सही जवाब। ये एकदम इजी क्वेश्चन है और ये आया है एनडीए 2019 में, तो आशा करते हैं आप लोगों का भी भाग्य इतना ही भाग्यशाली होंगे आप सब भी। तो ये सीरीज में क्या है, इस सीरीज में cos 90 डिग्री भी है, cos 90 डिग्री भी है, तो यदि cos 90 डिग्री भी है तो इसका वैल्यू तो 0 हो ही रहा है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर विल गिव यू व्हाट 0। चलो इसमें cos 90 डिग्री, हाँ क्या बोलिए सर इस क्वेश्चन में cos 90 डिग्री भी है ना? हाँ वही तो बोला ना मैंने, कह रहा है कि 46 से शुरू कीजिए और जाइए 135 तक, तो 135 तक जाइएगा जब, तो cos 90 डिग्री तो बीच में पड़ रहा है ना, ओके सर, हाँ। ठीक है, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जा रहा है 0, ठीक है। चलिए इसे ज़रा नोट डाउन करें। जहाँ पे भी डाउट होगी, दिक्कत होगी, प्लीज़ पूछें, ठीक है ना। श्योर सर। चलिए आगे बढ़ूँ। यस सर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बताओ ये क्वेश्चन कैसे किया जाए। cos a का वैल्यू दिया हुआ है कुछ, sin a का वैल्यू पूछ रहा है, सॉरी sin a/2 एंड sin 3a/2 पूछ रहा है, बताइए प्रोसीड करने का क्या तरीका होना चाहिए। স্যার 2 মাল্টিপ্লাই করে হাফ দিয়ে ভাগ করব, তারপরে 2 sin a sin b ফর্মুলা লাগিয়ে করা যেতে পারে। चलिए कीजिए, बताइए कितना आ रहा है। दैट इज ऑल्सो करेक्ट मेथड, बट जो आपने बोला, क्या कीजिएगा, अब क्या करोगे, यहाँ पे हाफ अप्लाई करो, ठीक है, और यहाँ पे 2 लिख दो, ठीक है, दैट मीन्स ऑल दिस थिंग मल्टीप्लाई 2 टाइम्स रहेगा। कौन सा फार्मूला लगेगा चेक करें और बताएं। सर cos a minus b minus cos a plus b। एग्जैक्टली cos ऑफ a प्लस b बाई 2, यही ना, तो कितना बच जा रहा है, सिर्फ 2a लिख सकते हैं यहाँ पे। जी सर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2a लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, सिर्फ a। सर आई थिंक फर्स्ट टर्म आएगा cos a minus cos 2a। अच्छा हमारा तो माइनस में था, है ना, तो माइनस वाला पहले था हमारा, राइट, सो सर minus cos 2a। चलो सर ऑप्शन बी होगा 5/6। चलिए ऑप्शन बी आ रहा है जी, चलिए ऑप्शन नंबर Yes, बी sir. इज द राइट आंसर। सर कैसे cos 2a हो गया ना? अच्छा कैसे, चलो कैसे का कहानी बताते हैं। यहाँ लिखेंगे पहले हाफ, फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे 3a/2 माइनस a/2, यानी कितना हो जाएगा cos a, यही होगा,
फॉर्मूला क्या था, याद है आप सबको या नहीं है? Yes sir, a minus b. एग्जैक्टली, a माइनस बी और माइनस ऑफ a प्लस बी बाद में Cos था। minus is yes sir. ये बाद में था, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2a। So 2a. चलो Yes sir. ये हाफ रहा। cos a का वैल्यू तो So ऑलरेडी 3/4 पता है कितना, 3/4 ये पुट कर दें। और cos 2a का वैल्यू cos थीटा के रेस्पेक्ट में कितना था, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने cos डिस्कस किया। square a minus cos 2 थीटा, 2 cos square a minus अच्छा उल्टा लिख दिए। Yes sir. cos थीटा का वैल्यू 2 थीटा के रेस्पेक्ट में कितना था बताओ? So 2 cos square 2 theta minus 1. 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, बस ये यहाँ पे पुट कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, Yes sir. ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ उसके वैल्यूज को, So 9/16. ठीक है। Yes, मैं sir. डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कौन से वैल्यूज को, 3/4 होल स्क्वायर माइनस 1, यही तो। Yes sir, it is 5/16. चलिए अब इसको मैम समझ में आया, अभी जो थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कैसे, उन्हीं के लिए अच्छा। ये वाला क्लियर हुआ। ये फॉर्मूला यहाँ पे, इसीलिए मैंने कहा कि जितने भी फॉर्मूलाज दिया जा रहा है, मल्टीपल एंगल एंड सब मल्टीपल एंगल, आपको जो है ध्यान देना होगा, याद रखना होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चेक करें आंसर, Yes, बी sir. आ रहा है 5/16। Yes sir. कीजिए जल्दी एकदम। 5/16. अब बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, बताएं। So 1 minute तो लग जाएगा. ये 1 मिनट लगेगा इसको सॉल्व करने में यार? सर आपने तो बोला, आपने स्टार्ट किया 1840, now it is 1842. अच्छा आप हमारा टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं। सर बोर्ड में लिख रहे हैं ना। चलिए हमको तो सर ठीक कुछ है। ही सेकंड्स. कितना सेकंड्स? सर 30 to 50. अच्छा 30 to 50, 30 चलिए seconds. यानी 1 मिनट के अंदर बन जाएगा, है ना? जी सर, एकदम सर. चलिए। यस सर। तो बस 1 मिनट के अंदर बन जाना चाहिए ये सब इस तरह के क्वेश्चंस। बहुत सारा अड़ियल क्वेश्चन भी रहेगा, वो भी हम दिखाएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है ना, बहुत सारे अड़ियल क्वेश्चन भी रहेंगे, तो वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को जरा देखें क्या कहता है। सर neither one nor two. sir only 2 अच्छा चलिए डी आ रहा है एंड बी आ रहा है, only 2. चलो और कोई आंसर? क्या कहता है? और किसी का कोई आंसर है, बताएं। हाँ अरे इतना सारा कैंडिडेट में सिर्फ 2 ही लोग जवाब देंगे, बाकी लोग क्या कर रहे हैं बोलिए। अरे आंसर सही है गलत है वो मैटर नहीं कर रहा है। कितना आ रहा है? बोलो। डी आ रहा है सर. चलिए डी ही आ रहा है, ऑप्शन बी भी आ रहा है और ऑप्शन डी भी आ रहा है, यही ना? यानी 2 आंसर आ रहे हैं, और बाकी लोगों का बोलिएगा जरा, आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर ऑप्शन बी आ रहा है। चलिए ऑप्शन बी आ रहा है। क्या कहता है ध्यान से देखो, cos थीटा प्लस 1/cos थीटा लिख सकते हैं क्या? बताइएगा जरा। यस सर। yes sir Yes sir. यस सर। अब पता है x प्लस 1/x का फॉर्मेट क्या था, लेस देन इक्वल्स टू कितना 2, याद है? जी सर. ये कंडीशन क्या आप लोगों को याद है, बताएं। yes In it sir. अच्छा लेस देन इक्वल्स टू था या ग्रेटर देन इक्वल्स टू था? उल्टा लिख दिया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 था। क्या था? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। कंडीशन क्या था? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ये आप देख सकते हो, x प्लस 1/x, am इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm।
यही वाला यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है, AM इज ग्रेटर दैन इक्वल टू GM वाला। कौन सा फॉर्मेट अप्लाई कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? AM इज ग्रेटर दैन इक्वल टू GM वाला, ठीक है। अब कंडीशन क्या है? कहता है पहला वाला कि cos थीटा प्लस sec थीटा का वैल्यू कभी भी 1.5 के बराबर नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है, कभी नहीं होगा। ये बराबर यदि होता होगा तो किसके बराबर हो सकता था? ये बराबर होता तो ये 2 के बराबर हो सकता था। ध्यान से समझिए, तो पहला स्टेटमेंट सही है ना या नहीं? Yes, sir. पहला स्टेटमेंट यानी सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नो सर। नहीं ना? नो सर। दूसरे स्टेटमेंट के पास आ जाइए। ये कहता है कैन नेवर बी लेस देन 2। जाहिर सी बात है, tan थीटा प्लस cot थीटा को हम कन्वर्ट करेंगे तो 1/tan थीटा। क्या करेंगे? 1/tan थीटा। और इसका भी वैल्यू वही कंडीशन में सेटिस्फाई करता होगा कि नहीं करता होगा? ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2, ठीक, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2 होता होगा, ठीक। tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है आप सबको हमारी? यस सर। हेलो, अब क्या कहता है? कैन नेवर बी लेस Yes, देन sir. 2। तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो ग्रेटर देन 2 है ना। ये तो ग्रेटर देन 2 है, तो लेस देन 2 तो कभी नहीं होगा। ये भी स्टेटमेंट सही है कि नहीं? ये भी स्टेटमेंट क्या सही है? ये वाला स्टेटमेंट भी क्या सही है? उसने तो कह दिया कैन sir. नेवर बी लेस देन 2, तो ऑब्वियस सी बात है, सही स्टेटमेंट है कि ये 2 से कम नहीं होगा, ये 2 से कम नहीं होगा। अब यहाँ से ध्यान से समझिए, वो कहता है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इट आर इज एक्चुअली होगा, इट नहीं होगा, इज आर करेक्ट। जाहिर सी बात है, दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है, दैट मीन्स आंसर सी होगा। ना ये होगा ना ये होगा, ये तो होगा ही नहीं। क्लियर हुआ? कहाँ पे गुगली खा रहे थे आप लोग? अब चेक करो गुगली कहाँ पे खा रहे थे वो अब आप क्वेश्चन में चेक करो कि कहाँ पे गलती हो रही थी। हाँ बोलिए। सर ये बोथ 1 and 2 क्यों होगा? फर्स्ट वाला तो सही था 1.5, सेकंड वाला? मैम सेकंड वाला भी तो सही है ना, वो तो बोल ही रहा है कैन नेवर बी लेस देन 2, तो सही बात है, वो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो नेवर बी लेस देन 2 तो बोल ही रहा है, तो सही तो बोला, स्टेटमेंट तो सही बोला ना। हम बोले आप वेजिटेरियन हो सपोज, तो हम यदि कह दें कि आप नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं खाते, इसका क्या मतलब है? क्या वेजिटेरियन खाना खाते हो? हाँ। क्लियर हुआ? स्टेटमेंट कहने का क्या मतलब हो रहा है? सो तो दोनों स्टेटमेंट तो सही ही है, दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारा? दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है। तो जब दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है तो हमारा कौन सा आंसर होगा? तो हमारा बोथ 1 and 2 होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन में था पूरा का पूरा ट्रिक जो कि सारे के सारे गुगली खा गए सारे के सारे गुगली खा गए। नाइदर वाला कैसे आप आंसर आप बोल रहे थे बताएं? जो नाइदर कह रहे थे उनसे मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। जी सर, वो आपने ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लगाया। हाँ स्टेटमेंट्स आर वेरी मच कंफ्यूजिंग सर। अच्छा, स्टेटमेंट वाज वेरी मच बी कंफ्यूजिंग। लेस देन एग्जैक्टली। चलिए ये थोड़ा सा कंडीशन थोड़ा देखें। ये कंडीशन जो आप देख सकते हो, ये वाला कौन सा? दैट x प्लस 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2। ये कंडीशन ही हम चेक करेंगे। ये कंडीशन चेक जी करेंगे सर। किस बुनियाद पे, किसके बेसिस पे हम इस कंडीशन को चेक कर रहे हैं? तो इसके बेसिस पे दैट द am इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। अब क्लियर हुआ? एकदम सर। चलिए सभी को क्लियर है आशा करते हैं। यस सर। किसी को भी डाउट है, कहीं पे भी डाउट है पूछो, पहले पूछो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। किसी को डाउट है बताएं? नो सर। नहीं है? नो सर। तो ये सब क्वेश्चन करने में कितना देर लगना चाहिए अब बताइए ये क्वेश्चन को करने चलिए इसका यानी हमें कॉन्सेप्ट पता होता तो लेस देन अ मिनट भी नहीं लगता है ना, मतलब लेस देन अ मिनट ही लगता। ऑब्वियस सी बात है, लेस देन अ मिनट ही लगता, मतलब 30 सेकंड से भी कम ही लगता। देखा जाए तो हमें 30 सेकंड से भी कम लगता। तो यहाँ पे हम लोग टाइम के साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और क्या। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इसे बताइए कैसे करेंगे।
समझ में आ रही है आप सबको ये बात? यस सर। ठीक है, कि कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे नोट डाउन कर लें, ये तो इजी क्वेश्चन ही था। आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। हाँ सर। चलिए ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल 114 डिग्री 35 मिनट 30 सेकेंड्स? बताइए। क्वेश्चन पहले देखिए, 1 रेडियन का वैल्यू क्या लिखवाया गया था आप सबको? बोलो। 1 रेडियन का वैल्यू क्या लिखवाया था? नहीं लिखवाया गया। पाई बाई 180 180। क्या 1 रेडियन का वैल्यू लिखवाया गया है? सर 57 पॉइंट कत डिग्री? एग्जैक्टली 57 डिग्री 57.3। इफ यू आर टेकिंग इन पॉइंट, यदि मिनट और सेकंड यदि लेते हो तो 16 मिनट एंड 21 सेकंड होता है। इफ वी कंसीडर द वैल्यू ऑफ रेडियन, तो 1 रेडियन का जो वैल्यू होता है वो 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड। तो ध्यान से समझिए कि ये वैल्यू जो है लगभग 114 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स नहीं है क्या? बताइए। है 2 रेडियन आंसर होगा क्या? हाँ, तो आंसर 2 ही रेडियन होता होगा। ठीक है, 2 रेडियन का वैल्यू कितना होता होगा? तो यदि इसके हिसाब से यदि निकालना चाहें तो 57 का डबल यानी 114 राइट डिग्री, 16 का डबल 32 एंड 42 सेकेंड्स। ये वेरी नियर तो दिख ही रहा है, 35 मिनट 30 सेकेंड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मिनट और वाला पार्ट जो है आप वेरी नियर एज्यूम करके आप इसका आंसर कह सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ? बताएं यहाँ तक कोई दिक्कत? जी सर। नहीं सर, नो दिक्कत। यस सर, क्लियर। चलिए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है किसी सर एक को? बार बता दीजिए। हाँ मैम बोलिए। एक बार बता दीजिए। अच्छा, फिर से एक बार बता दें। चलिए एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ। मैंने क्या बोला कि 1 रेडियन का जो वैल्यू है वो आपको दिमाग में रखना होगा कि 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड होता है। ठीक है, 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकेंड होता है। अब देखिए ये है 114 डिग्री, ये कितना है? ये है 114, तो ये तो डेफिनेटली 2 टाइम्स ऑफ 57 होता होगा। तो जब यदि 2 टाइम्स ऑफ 57 डिग्री होता होगा तो और हमें चेक करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, ये 2 टाइम्स करेंगे। यदि हम 3 टाइम्स कर दें 57 का, तब तो 114 से बहुत ज़्यादा चला जा रहा है ना, 114 से बहुत ज़्यादा चला जा रहा है। तो 114 का जो वैल्यू है वो कितने टाइम्स है? 57 का 2 टाइम्स है। तो बस, और बाकी मैंने तो यहाँ पे पूरा दिखा दिया, इसका भी 2 टाइम्स आप चेक करोगे तो आपका आ जाएगा 32 मिनट, और इसका 2 टाइम्स करोगे तो आ जाएगा 42 सेकेंड्स। तो विच इज़ वेरी नियर टू द क्वेश्चन, दैट इज़ 114 डिग्री 35 मिनट 30 सेकेंड्स। सो ये कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, दैट्स वाई वी कंसिडर द आंसर एज 2 रेडियन। क्लियर हुआ मैम? बताएं, क्लियर है सभी को? आप सभी को बताइए। यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। चलो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन जो है आपका पाथ फाइंडर वाला जो बुक है ना, ये बुक का ही क्वेश्चन है। चलिए बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। कहता है द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक when the time is 8 hours 25 मिनट, 8:25 सुबह का टाइम बता रहा है, तो कितना होगा? चलिए बताइए कि कितना होगा।
सर 92 डिग्री 45 मिनट। चलिए 92 डिग्री 45 मिनट आ रहा है सभी का। चलिए স্যার আমার 102 ডিগ্রি 30 মিনিট অপশন বি। আচ্ছা অপশন বি আসছে, অপশন এও আসছে, তাই তো? তো দুটো Yes, sir. অপশন আসলে তাহলে তো মুশকিল, আমাকেও সলভ করতে হবে তাহলে, তাই নাকি বলো? सर ऑप्शन चलिए ठीक है। अच्छा कैसे किया आपने? जो 92 डिग्री लाए हैं वो कैसे किए हैं, और 102 डिग्री जो लाए हैं आंसर उन्होंने कैसे किया? স্যার can I proceed? I say 102 degree 30 minutes sir. Okay. Sir Tell the me. hour hand I mean স্যার মানে যেটা আপনার আওয়ারের কাঁটা যেটা সেটা তো Total স্যার হচ্ছে 1 ঘন্টায় 12টা। 30 হ্যাঁ 12টা স্যার 30 হচ্ছে- ডিগ্রি 30 ডিগ্রি 30 ডিগ্রি কোণ অতিক্রম করে 1 ঘন্টা হ্যাঁ, গেলে। ঠিক আছে 1 ঘন্টা গেলে 30 ডিগ্রি, হ্যাঁ ঠিক আছে। সো স্যার তাহলে স্যার আমার 30 ইনটু স্যার অ্যাঙ্গেল ট্রেসড বাই দি আওয়ার হ্যান্ড ইজ স্যার 101/12 right, sir. 30 into 101. Okay, if we are converting, it will if we then are yes, sir. converting into what this thing, right? hour sir. Yes sir. पूरा Degree. को आप क्या करोगे, आप आवर्स में कन्वर्ट करोगे। कितना आ जा रहा है जी इसे आप क्या कर रहे हैं? चलिए तो 12 8 30 से मल्टीप्लाई कर चलिए तो यहाँ पे कितना आ जा रहा है, 30 से हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 को 30 से करेंगे, उसके बाद 5/12 इंटू 30 करेंगे, यही तो यही कर सकते हैं, बताइएगा जरा। यहाँ जो Sir, I'm not getting you sir. you are not getting Please my repeat, sir. point. I was No, saying sir. 8/5/12 you are getting, right? Yes sir. 8/5/12. So 8/5/12 would be how much? Can we write in this way? That's what I was asking. Yeah, yes sir. Yes. Yes चलिए sir. तो कितना आ जा रहा है? ये पूरी तरह कटेगा? नहीं कट रहा है, पॉइंट में ही आएगा, नहीं सर। राइट। चलिए ठीक है, 6 2 जा 6 5 जा, ठीक, पॉइंट में ही छोड़ देते हैं, बाई 2 में ही छोड़ देते हैं, तो यहाँ आ जा रहा है 8 3 जा 24 240 Sir 240 plus sir 25 by 2 by 2 12.5 sir. 12.5 यानी 252.5, यही तो? Yes sir. यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं Yes है। sir. 252 degree 30 minute. चलिए 252 डिग्री 30 मिनट, आप ऐसे भी 30 minute, लिख yes, sir. सकते हैं हम लोग, या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 252.5 डिग्री, है ना? यहाँ 5 तक degree, किसको yes, डाउट sir. है पहले ये बताओ, यहाँ तक किनको डाउट है पहले ये चलो बताओ। एक्सप्लेन कर दीजिए ना। अच्छा फिर से एक्सप्लेन करें। সকালবেলা অর্পণরা পড়ে अच्छा उन्हीं করে এসছেন, अच्छा चलिए। सो 8 आवर्स 25 मिनट को हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो है कन्वर्ट कर रहे हैं, किसको? मिनट में, आवर्स में। तो आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या कीजिएगा, बाय 60 कीजिएगा ना, तो ये तो ऑलरेडी आवर्स में है, और ये भी क्या हो गया, आवर्स में हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत बताइएगा जरा। नो सर। नहीं ना? अब देखिए 12 आवर्स में कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री, तो 1 आवर में कितना हो जाएगा, 1 आवर में कितना हो जाएगा, क्या करेंगे आप लोग? व्हाट वी आर गोइंग टू डू, डिवाइड, राइट, डिवाइड है ना? डिवाइड करोगे आप, 1 आवर में कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है, 1 आवर में कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब आप इसको जब 30 डिग्री। फ्रैक्शन में बदलोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 आवर प्लस 5/12 आवर्स, तो हम तो लिख ही सकते हैं ना, 8/5/12 आवर्स डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइएगा। जी सर। हाँ सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इसी को मैंने बदला है, इस आवर को ना, 1 आवर के लिए तो 30 डिग्री है, तो इतना आवर्स के लिए कितना डिग्री होगा, तो इतना डिग्री होगा। अब समझ में आया? बोलिएगा जरा। 30 into 8 हो जाएगा। प्लस 5/12 into 30, 30 into 5/12. ठीक है। Yes, sir. आप 1 आवर के लिए 30 डिग्री यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे भी तो करेंगे ना। अब क्लियर हुआ मैम? बोलें, यस जहाँ पे भी डाउट है तो पूछ लो। और भी कोई बोल रहे थे कि सर बताइए, अभी क्लियर हुआ, बताओ। यस सर। यहाँ तक कोई डाउट है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 252.5 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 252.5 डिग्री। लेकिन ये मिनट में टोटल एक बार जब घूमता है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 6 डिग्री 60 मिनट है 60 ना? minutes, चलिए एग्जैक्टली 360/60 तो 360 होगा, 360 डिग्री, तो 1 मिनट में by कितना 6 हो जाएगा, sir. कितना हो Sir, जाएगा, 6 degree 6 का। मिनट, सॉरी 6 डिग्री, Yes, sir. उल्टा बोल दिया। 6 डिग्री 1 मिनट में फिर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यहाँ तक किनको डाउट है बताइए।
यहाँ तक 60 मिनट में 360 डिग्री है, मतलब एक बार पूरा मिनट का कांटा घूमेगा तो 1 आवर होता है, यही ना। तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। ठीक, 60 मिनट शुड बी इक्विवेलेंट टू व्हाट? 60 मिनट शुड बी इक्विवेलेंट टू 360 डिग्री। 60 minutes should be equivalent to 360 डिग्री। तो 1 minute should be equivalent to how much डिग्री? बताइए। 6 डिग्री। 6 डिग्री। अब ध्यान से समझिए, आपके पास मिनट कितना था? मिनट वाला कांटा कितना था? 25। तो 25 मिनट के लिए 25 मिनट के लिए कितना करेंगे? कितना करेंगे? 150 डिग्री। चलिए 25 मल्टीप्लाई बाय 6 विच इज नथिंग बट 150 डिग्री। 150 डिग्री। अब ध्यान से समझिए क्या करना है आपने। जो किया यहाँ पे, ये क्या किया आपने? तो मिनट वाला को भी तो आवर में बदल कर कंसीडर कर लिया था ना। मिनट वाला को भी आवर्स में कन्वर्ट करके कंसीडर कर लिया था। तो ये वाला जो हिस्सा है ये 2 बार कंसीडर हो गया। तो जब कंसीडर 2 बार हो गया तो उसको आवर्स हैंड से एंगल निकालने के लिए, उन दोनों के बीच में एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे? 25 मिनट का जो एंगल है उसको माइनस कर देंगे। एग्जैक्टली। तो एंगल कितना आ जाएगा? द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड द आवर हैंड करने के लिए क्या कीजिएगा? जो आवर हैंड का जो टोटल एंगल आपने निकाला और मिनट हैंड का जो टोटल एंगल आपने निकाला, उन दोनों को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। तो उन दोनों को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो कितना आ रहा है? तो 252.5 माइनस 150 विच इज़ नथिंग बट 102.5 डिग्री, यानी 102 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, दिस इज़ द आंसर। किनको अभी भी डाउट है फिर से पूछो, फिर से एक्सप्लेन किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा होगा ट्रिकी है आपके लिए मे बी। सर लास्ट वाला जो कैलकुलेट किया आपने 2 बार के लिए, हाँ समझ नहीं। चलिए एक बार मैंने क्या किया, एक बार मैंने आवर्स को पूरा टाइम को ही आवर्स में कन्वर्ट कर लिया। तो इस 25 मिनट को तो आपने यहाँ पे एज्यूम कर लिया, यही ना। ध्यान से समझिए, तो 25 मिनट को जब पूरा एज्यूम कर लिए तो पूरा हमने डिग्री क्या निकाला है? आवर्स के बेसिस पे हमने पूरा डिग्री निकाला है 252.5 डिग्री। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बताएं। अब ध्यान से समझिएगा, जब 252.5 डिग्री है और आपने 25 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करके कंसीडर किया, तो सिर्फ 25 मिनट वाला कितना एंगल बनाता होगा? तो 25 मिनट वाला टोटल एंगल बनाता है 150 डिग्री। यानी इसमें जो एंगल एडेड है वो कौन सा वैल्यू एडेड है? तो 25 मिनट वाला भी एडेड है। 25 मिनट वाला एंगल जो वैल्यू था 150 डिग्री, वो भी एडेड है। तो उन दोनों के बीच में, मतलब आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में फिर एंगल कितना होता होगा? तो मिनट वाला तो घटाना पड़ेगा कि नहीं घटाना पड़ेगा? यदि आप 2 चीज़ कंसीडर कर ले रहे हो, मतलब एक ही साथ कंसीडर कर ले रहे हो आवर में, तो समझे। आवर्स में आपने मिनट को तो कैलकुलेट कर लिया ना आवर में, तो उसका तो एंगल तो घटाना पड़ेगा तब ना टोटल। ये तो टोटल एंगल आ गया, ये आपका टोटल एंगल आ गया। तो सिर्फ आवर हैंड में और मिनट हैंड के बीच में कितना एंगल है? तो वो एंगल करने के लिए क्या कीजिए? आवर्स हैंड टोटल का आवर हैंड माइनस मिनट हैंड। क्लियर हुआ? बताएं। हाँ सर क्लियर। मैम अभी जो डाउट पूछ रहे थे थोड़ी देर पहले, क्लियर हुआ? यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछिए, फिर से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर आ रहा है कितना? 102 डिग्री, मतलब 102.5 डिग्री विच इज़ नथिंग बट 102 डिग्री 30 मिनट। 0.5 डिग्री कितना होता है? 30 मिनट के बराबर। 1 डिग्री में ये याद रखें, शायद लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे पता नहीं। 15 डिग्री कैसे है? क्या क्या क्या? 250 माइनस 0.5 माइनस 15 डिग्री कैसे है? 150 है मैम। ओ 150 जी, ये 150 है। इसको क्लॉक हटा दे रहे हैं, इसके कारण जो है हम बदनाम हो रहे हैं, बताओ। ठीक है, 150 डिग्री को माइनस किया हमने, ठीक है, 15 नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हमेशा याद रखिए। अब यदि हम आपको क्या दें, एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं, चलो लिखो। फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 9 hours 25 minutes। क्वेश्चन क्या रहेगा? 9 hours 25 AM करो PM करो जो भी है, इसका एंगल आपको निकालना है, आवर्स हैंड एंड मिनट हैंड। ये क्वेश्चन रहेगा होमवर्क। दिस क्वेश्चन विल बी एज होमवर्क।
ठीक है, दिस क्वेश्चन विल बी एज होमवर्क। सेम तरह का क्वेश्चन आपको दे रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। चल, यहाँ तक कोई परेशानी तो बोलिएगा ज़रा। No, sir. नहीं है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे सर बढ़ रहे हैं। 32.5 डिग्री सर। 32.5 डिग्री आया, सर 132.5। चलिए देखते हैं। सॉरी 132, यस सर 132, 132, 132.5, খারাপ আছে ठीक ठीक 132.5। ঠিক তো তারপরে আমি আর चलिए इस क्वेश्चन को बताएं कितना होगा। इस क्वेश्चन को बताइएगा कि कितना आंसर आ रहा है। लॉगरिदम का जो चैप्टर हमने करवाया, आप लोग क्वेश्चन सारा देख लिए, कोई डाउट मिला? सर आपने लॉगरिदम ऑफलाइन क्लास में करवाया था क्या? जी ऑफलाइन क्लास में करवाया था। ओ, आप नहीं हम थे तो सर क्या? नहीं थे जी तो सर। नहीं थे, ओके ओके। हम सर ऑनलाइन में ही क्लास करते हैं। अच्छा, ऑनलाइन में ही सारे क्लासेस कर रहे हैं आप? जी सर, हम बहुत दूर रहते हैं कलकत्ता से। अच्छा, कोलकाता से ही आप दूर रहते हो? बहुत दूर सर, 172 किलोमीटर अबाउट। ओके, तब तो काफ़ी दूर है। दुर्गापुर वगैरह तरफ रहते हैं क्या आप? नहीं सर, ये सर द डिस्ट्रिक्ट इज बर्धमान। अच्छा, बर्धमान तरफ, बर्धमान में ही रहते हैं हम। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ऑनलाइन क्लासेस भी चलेगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हम ही ले रहे हैं अभी फ़िलहाल। आई होप मैं लाइक अपना बेस्ट दे पा रहा हूँ। मतलब बेस्ट मेरा कब दूंगा, जब आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। तो आई होप सभी को समझ में आ रही है ये बातें। नो सर, योर क्लास इज आल्सो वेरी मच इंटरेस्टिंग। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। नाउ सी, ये दिख रहा होगा क्या है? अच्छा, ये 2 टाइम्स यदि कर दिया जाए तो कितना आ जा रहा है बताओ? আমি सर 585 डिग्री। चलिए 585/2, यही ना? आप लिख ही सकते हो साइन को, जी सर। 585/2 डिग्री। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हमने क्या किया मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदला, तो अब इसमें भी डाउट है, तब क्या बोले? डाउट है मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर No, फ्रैक्शन sir. में बदले हैं, कोई डाउट नहीं है, ठीक है? अब ध्यान से समझो। सर वी आर वेरी मच क्लोज फ्रॉम द आंसर। कैन यू वेट फॉर 1 मिनट? या श्योर, टेक योर टाइम। चलिए, साइन थीटा/2, मैं हिंट क्या दे रहा हूँ कि सब मल्टीपल एंगल वाला जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करो। चलो, सर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अच्छा, Just a option minute, C sir. और डी में कुछ है आ रहा है ना? चलिए देख लीजिए। जस्ट अ मिनट सर। ओके, टेक योर टाइम। सर ऑप्शन डी सर। चलिए, ऑप्शन डी आ रहा है, सभी का आ रहा है, चेक करें। जी सर। चलिए, सभी का आ रहा है, चेक करें। Please check everyone is getting the answer or not. साइन थीटा/2 का फॉर्मूला बताएं कितना? उससे पहले आपको क्या करना है? आपको क्वाड्रेंट चेक करना है कि 585/2 जो है वो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो 292 डिग्री, तो 270 के बाद ही ना लाई करेगा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, हाँ या ना? यानी ये वाला एंगल जो है वो कहाँ पे लाई करेगा? यहाँ पे लाई करेगा। तो ये चीज़ समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? यस सर, यस सर। समझ में आ रहा है ना? तो मैं क्या Yes, sir. लूँगा, मैं यहाँ पे अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पे माइनस साइन ले लूँगा। मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा? माइनस साइन ले लूँगा। अब बताइए साइन थीटा/2 का फॉर्मूला क्या था? सर रूट ओवर 1 माइनस कॉस थीटा/2। चलिए, कॉस थीटा/2, बहुत बढ़िया, कॉस थीटा/2। यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे? माइनस रूट ओवर, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस
cos 585 585 यही लिखोगे ना आप? yes sir yes sir cos 585 बाय 2। अब 585 देखिए कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो 180 इंटू 3 कितना आ जा रहा है 540, ठीक। Yes, sir. 540 प्लस कितना 45 ना, तभी ना आएगा 585। yes sir हाँ सर फिर से मैं कह रहा हूँ 585 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो 585 को 180 मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स यानी क्या है, तो फर्स्ट ये घूर फिर कर यहीं पे आएगा, और 45 जब ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा इस क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट नंबर 3। तो क्वाड्रेंट 3 में कॉस का तो घर ही नहीं है, जब कॉस का घर नहीं है तो अंदर में क्या हो नेगेटिव आएगा, अंदर में जो है नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव नेगेटिव क्या हो प्लस जाएगा प्लस पॉजिटिव exactly। और ये हो जाएगा cos 45 और ये हो जाएगा कितना 1 बाय, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब इसको आप खुद बैठ के सॉल्व करेंगे या हम ही से करवाएंगे? স্যার আপনাকেই করতে হবে, কারণ এখানে আরেকটা ট্রিক্স লাগবে স্যার। আচ্ছা আরো একটা কারণ trick স্যার লাগবে? এমন আরেকটা ট্রিক্সের লাস্টে গিয়ে সলভের লাগবে, নইলে যেটা অপশন আছে সেটা অ্যানসার আসবে না। আচ্ছা ঠিক আছে দেখে নিচ্ছি আমরা, আপনি দেখুন একটু। হ্যাঁ স্যার তাহলে এখানে আমরা কি লিখতে পারি, cos 45 ইজ 1/√2 বাই 2, তাই তো? এটাই লিখতে হবে। জি স্যার হ্যাঁ স্যার ওকে আমি একটু স্পেসটা শিফট করছি। ওকে সো আফটার দ্যাট এটা কি আমরা এরকম লিখতে পারি নাকি, √2 + 1 √2 + 1 বাই 2√2 বাই 2√2। তো ডেনোমিনেটরতে তো আমরা তো √2 রাখতেই পারবো না, দ্যাট মিন্স উই ক্যানট টেক ইরেশনাল নাম্বার ইন ডেনোমিনেটর, সো হোয়াট উই হ্যাভ টু Yes, sir. টেক, we have to স্যার √2/√2 দিয়ে গুণ করব। ইয়েস এটা স্যার এই জন্যই বললাম স্যার। থেকে মাল্টিপ্লাই করতে হবে, এটা কি আপনারা জানতেন না? টেল মি। অবশ্যই জানতাম স্যার, তা বললাম আপনাকে। ऐसे করেছি সেখানে सो द वैल्यू इज कमिंग एज माइनस ऑफ हाफ। यहाँ देखिए 2√2 इंटू √2, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो 2 बाहर चला जाएगा, तो माइनस हाफ, और रूट में क्या बच रहा है 2 प्लस यहाँ √2 इंटू √2 यानी 2 प्लस √2, तो ये वाला ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर। चलिए क्लियर हुआ? Yes, sir. बताएं, यस सर जिनको भी डाउट है फिर से पूछो, फिर से समझाएंगे। यहाँ पे किसका खेल है? हाँ कहाँ पे दिक्कत हो रही है बोलिए? sin थीटा बाय 2 का फॉर्मूला के बाद ये जो 180 into 3 টা একটু কোনটা কোনটা বুঝতে পারলাম না, বলুন। 180 into 3 পর যেটা করেছেন ওটা বুঝতে পারছি না, -1 এইটা আমি কি করলাম, এইটা 585 কে আমি ব্রেক করলাম, ঠিক আছে। 585 কে কি আমি লিখতে পারবো 180 into 3 + 45 কি লিখতে পারবো? 540 + 45 কি আমরা লিখতে পারবো? আমরা কেন লিখছি, কেন ওইটা আপনার কোয়াড্রেন্টটা বের করার জন্য শুধু লেখা যাচ্ছে, ঠিক আছে। কেন লিখবো আমরা, এই কোয়াড্রেন্টটা চেক করার জন্য কি কোন কোয়াড্রেন্টে আসছে, ঠিক আছে। তো 3 পাই মানেটা কত চলে আসছে, এখানে চলে আসছে। 3 পাই মানে কত, 1 পাই 2 পাই অ্যান্ড অ্যাগেন 3 পাই, তো 3 পাই চলে আসছে এখানে। 3 পাইয়ের পর 45 যদি আমি অ্যাড করি তাহলে ডেফিনেটলি এই অ্যাঙ্গেলটা আসছে, এখানেই আসছে, থার্ড কোয়াড্রেন্ট, তাই নাকি বলো? থার্ড কোয়াড্রেন্ট আসবে তো। থার্ড কোয়াড্রেন্ট cos থিটা কি হয়, পজিটিভ হয় না নেগেটিভ হয়, কি হবে? দ্যাট মিন্স নেগেটিভ স্যার। কেন কি আমি বললাম থার্ড কোয়াড্রেন্টটা হচ্ছে tan and cot এর বাড়ি, ঠিক আছে। তাহলে cos যদি ওখানে ওই বাড়িতে যাবে তাহলে ওকে কি করতে হবে, ট্যাক্স দিতে হবে, টাকা দিতে হবে, ঠিক আছে। তাই জন্য ওখানে মাইনাস সাইন, ঠিক আছে, বোঝাতে পারলাম? তারপরেরটা ক্লিয়ার আছে? তারপরের পার্টটা ক্লিয়ার? এই পার্টটা ক্লিয়ার আছে তো, এই যে সলভ করলাম এইটা এখান মাইনাস, হ্যাঁ এটা তো বুঝছি না, মাইনাস কোনটা কোনটা বলুন, এই মাইনাসটা বলছেন নাকি? উপরটা -1, না না উপরটা -1 + √2/2, ওটা -1, এই মাইনাসটা বলছেন কেন আসছে সেইটা বলছেন নাকি? ফর্মুলাটা স্যার একটু বুঝিয়ে দিন। ফর্মুলা যে মাইনাসটা sin থিটা, আচ্ছা কি করে মাইনাস এসেছিল এইটা থাকছে। দেখুন আগে আমি কি করলাম, আমি চেক করলাম এইটা কি এইটা কোন কোয়াড্রেন্টে আসছে, তো এইটা আসছে ফোর্থ কোয়াড্রেন্ট, তাই জন্য আমি মাইনাস সাইন নিয়েছি এখানে,
ঠিক আছে, এই যে মাইনাস সাইন যে দেখতে পাচ্ছেন আপনি, এটা হচ্ছে কিসের জন্য? এই অ্যাঙ্গেলটা থাকছে কোথায়? ফোর্থ কোয়াড্রেন্ট। বুঝাতে পারলাম? বলো। সাইন অফ 292.5 ডিগ্রিটা কত চলে আসছে? এই চলে আসছে এই কোয়াড্রেন্ট, থার্ড কোয়াড্রেন্ট, তাই তো? থার্ড কোয়াড্রেন্টে যখন আসছে, when it is coming to third quadrant তো সাইনটা তো নেগেটিভ হবে, তাই নাকি বলো? সাইনটা কি নেগেটিভ হবে? তাহলে আমি কি লিখতে পারি? এখানে তো লিখতেই পারবো না সাইন অফ θ/2, এখানে তো লিখতেই পারবো মাইনাস সাইন অফ θ/2। আমরা কি লিখতে পারবো বলো? মাইনাস সাইন অফ θ/2 কেন লিখছি? কেন কি এখানে আমার ফোর্থ কোয়াড্রেন্ট চলে আসে, থার্ড কোয়াড্রেন্ট ছিল তো 270, ওকে ফোর্থই কোয়াড্রেন্ট ছিল, ঠিক ফোর্থ কোয়াড্রেন্ট ছিল। এটা আমার কত চলে আসছে? এখানে চলে আসছে। এই 292.5 ডিগ্রি কত চলে আসছে? ফোর্থ কোয়াড্রেন্ট। তো ফোর্থ কোয়াড্রেন্ট সাইন হচ্ছে নেগেটিভ, তাই জন্য আমি লিখলাম মাইনাস সাইন θ/2। ঠিক আছে, তো মাইনাস সাইনটাও তো থাকবেই। আর সাইন θ/2 এর ফর্মুলাটা কি ছিল? ওইটা ছিল 1 - cos θ/2, তাই তো? এই ফর্মুলাটা পুট করলাম, তারপর সেই মাইনাসটা তো চলেই যাচ্ছে। নাও ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? टेल मी। यस सर। क्लियर हुआ? सभी को क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ, इतना फिर हम जो टाइम वेस्ट किए बेकार हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड राइट? चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी का भी? No, sir. नहीं है ना? ओके, चलिए ये क्वेश्चन के पास आते हैं और बताइए आंसर क्या होगा। ओके चलो बताओ क्या होगा। এই কোশ্চেনটা কি করে করা যায় বা কি করে প্রসিড করব? স্যার রাফলি এটা স্যার হয় আইদার সি নর বি, আইদার সি অর বি হবে বা বি হবে, তাই তো? ওকে স্যার ডি, স্যার ডি ডি। আচ্ছা ডি বলছি, অপশন ডি লাস্ট অপশন। হ্যাঁ স্যার, অপশন সি আর অপশন ডি হবে। ওকে হ্যাঁ চলিए ठीक है, রাফলি এবার আমি একটু করে দেখছি। ओके ओके, गिविंग यू ऑल 2 minutes, प्लीज सॉल्व इट। I am getting sin theta. Sin theta is always less than 1. ओके ऑलवेज लेस देन 1, दैट इज द राइट आंसर। चलिए ऑप्शन डी आ रहा है द सेम आंसर और नॉट? Yes sir, it is less than 1. चलिए लेस देन 1 आ रहा है, सभी का आ रहा है? चलिए ध्यान से देखिएगा, क्या हम इसको पहले तो हम मिक्स फ्रैक्शन में बदल देते हैं तो 135/2 आ रहा है, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल देते हैं तो 225/2 आ रहा है। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। क्या हम इसको, इस पोर्शन को 1 प्लस ऐसे लिख सकते हैं क्या? साइन ऑफ 90 माइनस अच्छा कॉस ऑफ ही लिख देते हैं। चलो স্যার कॉस ऑफ স্যার 180 থেকে 67.5 বাদ দিলি স্যার 112.5 আসছে। अच्छा वैसे यदि आप करना चाहते तो वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम ऐसे करना चाहें कि cos ऑफ 90 - 45/2 लिखें तो क्या हमारा 67.5 आ रहा है? 67.2 यस স্যার। चलिए आ रहा है, আসবে স্যার। चलिए হ্যাঁ স্যার। চলে আসছে তো। তারপর এখানে একদম আমি কি লিখতে পারি 1 প্লাস cos অফ 225, তাহলে কি আমরা লিখতে পারি cos অফ 90 প্লাস 45/2 কি আমরা স্যার লিখতে পারবো? 45/2 यस স্যার এক্স্যাক্টলি। হ্যাঁ স্যার অবশ্যই লিখতেই পারবো, ঠিক আছে। cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख दो साइन ऑफ 45/2, साइन ऑफ 45/2। अब ध्यान से समझिएगा जरा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 প্লাস, এটা কি হয়ে যাচ্ছে 1 প্লাস, ঠিক না? সি এখানে কত লিখবো আমরা 1 প্লাস না মাইনাস? না সি cos of 90 that means কোয়াড্রেন্টটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। if you change the quadrant, second quadrant, exactly, if it is changing the second quadrant এ সাইনের বাড়ি, এই সাইনের বাড়ি, তাই জন্য মাইনাস সাইন নিচ্ছি, আর তারপরে আমরা এখানে কি লিখবো সাইন অফ 45/2, স্যার সাইন 45/2।
ঠিক আছে তাহলে আচ্ছা আমরা আপনার কি sin এটা দিয়ে এসেছে আমার লিখতে স্যার cos পারবো? দিয়ে এসেছে এক্স্যাক্টলি এইটা আমরা লিখতে পারছি 1 মাইনাস sin 1 minus sin square 45 by 2 ঠিক আর এটা কার cos ফর্মুলা square ছিল 45 by 2 স্যার বলো cos এটা square কার theta ফর্মুলা cos স্কয়ার থিটা তো cos স্কয়ার Yes, sir. থিটা চলো cos স্কয়ার থিটা দ্যাট মিন্স 45 45 by বাই 2 তো এইটার ভ্যালুটা কত চলে আসছে এটার কিছু ফর্মুলা ছিল বলবে cos যদি আমি হাফ আর এটা 2 লিখে দিই তাহলে কি আমরা কিছু করতে পারবো বলো হ্যাঁ স্যার Cos ওই square আপনার theta by sin 2 2 is theta how plus much? 1 चलो So sin 2 theta plus 1 sin 2 theta plus 1 या cos 2 theta plus 1 सर Check करो। ऐसा cos 2 theta plus 1 सर cos 2 theta plus 1 यानी कितना यानी आ जा रहा है कितना cos सर cos 45 45 plus 1 प्लस 1 और बाय में 2 रहेगा तो बताइए Yes, sir. जरा बाय में 2 जो था हमारा वो तो रह जाएगा cos 45 डिग्री कितना होता है आई एम so राइटिंग 1 sorry 1 by root 2 I am writing this portion over here কত হচ্ছে Yes, sir. 1 by root 2 sir plus yes sir root 2 plus 1 by 2 root 2 ओके Yes, sir. चलिए जो उन्होंने ठीक ही बोला रूट 2 प्लस 1 बाय 2 रूट by 2 root 2 ध्यान Yes, से sir. समझिएगा Obviously less than लेस देन 1 ही होगा कैसे बता रहा हूँ ये क्या हो जा रहा है ये रूट 2 का जो वैल्यू है वो 1.4 होता है तो ये 2.4 होता होगा ठीक है डिवाइड बाय 2 इंटू 1.4 तो 1.4 इंटू 2 क्या होता होगा 3 पॉइंट समथिंग या 2.4 से तो बड़ा ही होगा डेफिनेटली जब बड़ा ही होगा तो इरेशनल नंबर तो होगा लेकिन क्या होता होगा लेस देन 1 से छोटा होगा বুঝাতে পারলাম বলো বুঝতে পেরেছো সবাই Yes, sir. বুঝতে পেরেছো তো बोलबे একটু किसी को कोई डाउट है तो पूछें पहले बताएं কারো ডাউট আছে তাহলে বলবেন less than 1 হবে ইয়েস লেস দ্যান 1 হি তো হচ্ছে এটা দেখুন এটা যদি আমি মাল্টিপ্লাই করতে চাই তাহলে কত চলে আসছে 2 1 2 আর 2 4 8 দ্যাট মিন্স ডেনোমিনেটরতে রাফলি চলে আসছে 2.8 আর উপরে চলে আসছে 24 সরি 2.4 তাহলে তো 1 থেকে তো লেসই হচ্ছে তো 1 থেকে লেস কাকে বলা হয় প্রপার ফ্র্যাকশন রিমেম্বার প্রপার ফ্র্যাকশনকে কি বলা হয় লেস দ্যান 1 sir less than 1 হয় তাই তো মনে আছে ওইটা ক্লাস ছোট্টবেলায় পড়েছিলেন হ্যাঁ স্যার মনে আছে তো ओके सो दैट इज द आंसर दैट मीन्स लेस देन 1 तो इंटीजर तो होगा ही नहीं क्योंकि रूट 2 हमारा आ चुका था रैशनल नंबर बट नॉट एन इंटीजर ये भी नहीं था है ना तो हमारा क्या था इरेशनल नंबर था लेकिन ये ऑप्शन नहीं है हमारा ग्रेटर देन 1 हमारा नहीं था हमारा क्या था लेस देन 1 যদি আমার ফ্র্যাকশনটা চলে আসতো 2.8 বাই 2.4 তাহলে आंसरটা হতো অপশন এ ইজ দ্যাট ক্লিয়ার বুঝাতে পারলাম বলো বুঝতে পেরেছো yes sir Yes, sir. সবাই বুঝতে পেরেছো यस सर ओके प्लीज नोट इट डाउन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हो गया था ना इसे या नोट डाउन कर रहे हैं कुछ लोग নোট ডাউন করে নিয়েছেন বা করছেন বলুন স্যার করে নিয়েছি স্যার সবার হয়ে গেছে यस सर ओके सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड चलिए इसे बताइए ये क्वेश्चन क्या कहता है प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस वन गिविंग यू ऑल 2 मिनट Please solve and check the answer how much you are getting. cos pi by 9 কত চলে আসছে ডিগ্রিতে যদি আমি কনসিডার করতে চাই 20 ডিগ্রি sir cos 20 cos 60 20 60 100 140 140. এইটা যদি 60 চলে আসে তাহলে cos 60 কত হয় sir half তাই তো তাহলে আমরা তো লিখতে পারবো হাফ প্লাস cos এখানে কত 20 এটা কত চলে আসছে 100 100. আর এটা কত চলে আসছে
140. cos of 140 চলো solve this thing কি করে সলভ করবেন বলুন how to solve this one अच्छा Sir, हमारा वीडियो cos और 120 हमारा वीडियो और ये दोनों आ रहा है क्या आपके स्क्रीन पे या सिर्फ yes, sir. हाँ दोनों Yes, ही आ sir. रहा है आपका वीडियो और शेयरिंग स्क्रीन दोनों आ रहा है सर. आपका दोनों वीडियो ही आ सर रहा है। अभी ऑफ है। अभी ऑफ है नहीं सर शो कर रहा है. क्या कर रहा है? मतलब वो जैसा हमारा सर नेटवर्क आपका कैमरा ऑफ है. नहीं कैमरा तो ऑन ही है यस सर। मैं भी अपने आप को देख So पा sir, रहा it हूँ must be some network issue, sir. yes it may be there might be network issues but I have kept my camera on so that you can see my faces हाँ, So I can see you. okay you can see me चलिए Yes, sir. सो इसे सॉल्व कीजिए बताइए कितना आ रहा है कौन सा फॉर्मूला लगेगा Sir, पता है ना Cos C plus 120 cos वैल्यू D को बोलबेन वाला हाँ बोलून सर cos 120 डिग्री की माइनस हाफ एग्जैक्टली क्यों नहीं वो तो जाहिर सी बात है किसके पास चला जा रहा सर है हाफ आंसर होगा सर हाफ चलिए Yes, आंसर sir, हाफ half आंसर आ answer रहा आ रहा है ये आ रहा है हाफ आंसर। ओके चलिए देखिए कैसे करते हैं क्या समझ में आ गया या समझाने की जरूरत है बोलो सर इजी है। मतलब मैं सभी से पूछ रहा हूँ कि आप लोगों को क्या समझाने की जरूरत है या आप लोग समझ गए हैं मतलब क्या सॉल्व करने की जरूरत है Cos सर, एक C बार बोल plus दीजिए, cos please. D क्यों होगा? क्या बोलिए ये फॉर्मूला के बाद cos C plus cos D लिखे वो समझ में नहीं आया। हाँ तो cos C plus cos D वाला ही फॉर्मूला लग रहा है ना याद है cos C plus cos D का फॉर्मूला क्या था मैम बताइए স্যার বলবো হ্যাঁ বলুন 2 ইন্টু কত স্যার আমরা আপনার ছাত্র আমাদেরকে আপনি বলছেন কেন স্যার আচ্ছা চলো তো তোমরা বলো আনসারটা কি 2 टाइम्स ऑफ 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2 एग्जैक्टली जब cos का प्लस फंक्शन रहता है तो cos का cos रह जाता है अब माइनस फंक्शन रहता है तो साइन हो जाता है ये चीज मैंने बताया अभी था ट्रिक याद आ रहा है आप सबको यस सर चलिए तो 2 cos c plus d by 2 cos c সরি ডিটা বড় ছিল না সিটা বড় ছিল সিটা যদি বড় থাকে তাহলে c plus d by 2 c minus d by 2 यही होगा और क्या तो कितना हो जा रहा है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ठीक है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ cos ऑफ 100 प्लस 20 बाई 2 यानी कितना हो जाएगा cos 60 60 सर इंटू और cos 40 100 माइनस 20 बाय 2 कितना हो जा रहा है cos 4 cos 40 चलिए cos 40 हो जा रहा है और इसको वैसे ही छोड़ दीजिएगा इसको जो है वैसे ही छोड़ दीजिएगा cos 140 वाला अच्छा 140 ध्यान से समझिए 140 जो है वो तो यहाँ पे लाई करता होगा हाँ या ना सेकेंड क्वाड्रेंट में तो जब सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो इसको क्या हम लिख सकते हैं 180 माइनस 40 बताओगे यस सर सभी से Yes, sir, पूछ रहा लिख हूँ सकते हैं। कि 140 को क्या हम लिख सकते हैं 180 माइनस 40 तो 140 को तो लिख ही सकते हो तो ऑब्वियस सी बात है ये देखिए उसका जब क्वाड्रेंट ही नहीं है तो cos ऑफ माइनस 40 देगा क्या बताओ मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे मैं क्या लिख दे रहा हूँ cos ऑफ माइनस 40 मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ठीक है cos ऑफ माइनस 40 मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ आ रहा है यस सर yes sir cos ऑफ 140 को मैंने हाँ मैम बोलिए सर 2 cos थोड़ा फॉर्मूला नहीं बुझाया कैसे लिखे सिंपल स्टेप में আচ্ছা এই ফর্মুলাটা বুঝতে পারছেন না cos c plus cos d টা ফর্মুলাটা বুঝতে পারছেন না cos of c plus d by 2 into cos of c minus d by 2 এই ফর্মুলাটা আছে মনে আছে আপনার মনে আছে হ্যাঁ তো এটাই তো অ্যাপ্লাই করলাম 100 plus 20 by 2 দ্যাট মিন্স 120 by 2 কত চলে আসছে 60 চলে আসছে তো তাই জন্য লিখেছি cos 60 ঠিক আছে আর 100 minus 20 by 2 কত চলে আসছে 80 by 2 দ্যাট মিন্স cos 40 আবার বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা ठीक है सो इट वुड बी हाफ चलिए प्लस 2 टाइम्स ऑफ यहाँ पे कितना हो जा रहा है हाफ सर हाफ ही हो जा रहा है तो ये तो कट ही जाएगा cos 40 कैंसिल हो रहा है cos 40 कट ही जा रहा है तो बचा क्या लड्डू चलो खा लो तो हाफ आंसर आ रहा है ठीक है क्लियर हुआ यस सर
चलिए ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा जल्दी 2 घंटे लगभग बीत गया नहीं? कितने लोगों को समय का एहसास हुआ है? नहीं सर, नहीं हुआ है? বুঝতেই পারলাম না স্যার কখন সময় सर লেগে बहुत जल्दी बीत अरे गया सर टाइम आज। एक्चुअली एक राज की बात बता दें आप लोगों को, हमारे क्लास की यही खासियत है दैट यू वोंट फील दैट टाइम। ये तो लाइक ऑनलाइन की Exactly, बात sir. बता रहा हूँ, ऑनलाइन की बात बता रहा हूँ। जब आप ऑफलाइन रहते हो ना मेरे साथ, तो मैं तो कभी भी आपको फील होने ही नहीं दूंगा दैट यू आर स्पेंडिंग 2 hours फॉर मैथ्स। आई वोंट लेट यू नो दैट, ठीक है? वेरी मच क्यूरियस अबाउट ऑफलाइन क्लास सर। चलिए आइए कभी रूबरू सर होते अभी हैं। ढाकुरिया में ही हूँ, अच्छा ढाकुरिया में ही वाटर है? कलर स्टेज के सर। हाँ सर, अभी तो ऑफलाइन क्लास बंद है इसलिए। जी जी जी, कंडीशन खराब है मैं सर। अभी 2 दिन गया था ढाकुरिया, एक दिन तो ऑनलाइन ही लिया भी था मैंने, याद ही होगा आप लोगों का। लास्ट जो क्लास हुआ था ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हाँ, मोड सर। एक साथ हुआ था, बड़ा बहुत दिक्कत सर, भी हो ठीक रहा सर। था, ये भी बात है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया ना आप सबका, नोट डाउन कर लिए हैं? मैं आगे बढ़ रहा Yes, हूँ। सर ये जीपी में रहेगा सर। अरे तेरी वाह, बहुत बढ़िया। सही ये बात सर है। हमारा बुक का प्रॉब्लम है। Plus बुक 12 का ही में हाँ तो, सर, जीपीएस का। हाँ 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 सही बात है। चलिए इसको आप सही पकड़े हैं, ठीक है ना? इसको कैसे लिख सकते हो, ध्यान से समझोगे। इसको आप जो है पाई प्लस पाई बाय 6 लिख सकते हो, नो डाउट। लिख सकते हो क्या, बताओ? हाँ सर, पाई प्लस पाई बाई 6, ठीक है, लेकिन सर 2 पाई प्लस पाई बाई 4। एग्जैक्टली। यहाँ वो 9 पाई बाई 4 2 का। पाई प्लस पाई बाय 4, और इसको क्या कीजिए, Yes, sir. इसे ওটাকেও कीजिए। স্যার 2 পাই প্লাস 4 পাই বাই 3। चलिए 2 पाई प्लस 4 पाई बाई 3 पक्का, या Yes, sir. 3 पाई Okay. 3 पाई 3 प्लस पाई पाई बाई 3 नहीं सही रहेगा? हाँ सर, हाँ सर बताइए। 3 पाई प्लस 3 पाई प्लस 3 पाई पाई प्लस पाई बाई 3 कितना आ रहा है? हाँ सर आसान आ जाएगा सर। ठीक सर। 3 पाई प्लस पाई बाई 3 क्या आ रहा है, बताइएगा जरा। हाँ सर आ रहा है आ रहा है हाँ सर, ना? आ रहा है। तो ये आ तो रहा है सर। अपने ही क्वाड्रेंट में है, पाई प्लस पाई बाई 6 जो है वो तो अपने ही क्वाड्रेंट में है, यानी ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। ये तो 2 पाई प्लस पाई बाई 4 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। इसका बताइएगा 3 पाई प्लस पाई बाई 3 1 बाई रूट 3। तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ये वाला? सर 3 फर्स्ट पाई, क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। यस सर, ये सबका घर है। सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट ना थर्ड क्वाड्रेंट? सर 3 पाई प्लस बोले ना। हाँ तो 1 पाई 2 पाई फिर 3 पाई प्लस पाई 3 पाई सर तो थर्ड क्वाड्रेंट। सर थर्ड क्वाड्रेंट तो में आ मैं- रहा है quadrant। फर्स्ट वाला। ये तो थर्ड क्वाड्रेंट हाँ, आ रहा है। third quadrant। अब जब थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट तो टैन का ही घर है। थर्ड क्वाड्रेंट क्या है, टैन का ही घर है। तो ध्यान से समझिएगा, इसका वैल्यू आएगा पाई बाई 6 यानी कितना डिग्री, 30 डिग्री। पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, यही तो। इसका पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री। हाँ सर। तो बस tan 30 कितना होता है 1 बाई रूट 3, इसका होता है 1, इसका होता है रूट 3। ये वाला वैल्यू किस में है, तो जाहिर सी बात है ये जीपी जीपी में है, सर। ठीक है। तो कुछ था नहीं, क्वेश्चन में कुछ था नहीं। मैम समझ में आया? कुछ डाउट है तो sir. पूछिएगा जरा, कुछ डाउट है यहाँ पे? नो सर। यहाँ क्या करना था, सिंपल सी बात बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्वाड्रेंट चेक करना है। क्वाड्रेंट चेक करने के बाद उसके बाद वैल्यूज पुट कर दीजिए, फिर चेक कीजिए कि ये किस में है, एपी में है, जीपी में है, क्या में है, ठीक है। तो 1 बाई रूट 3 1 रूट 3 यानी यहाँ पे क्या चीज़ मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है, रूट 3। देखिए रूट 3 को पहले से मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा 1, दूसरे से मल्टीप्लाई कीजिए, दूसरे को रूट 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा रूट 3, ठीक है। तो जीपी में है, ठीक है, ये जीपी में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला तो शायद दिमाग खाएगा, चलो बताओ इसको। স্যার ফর্মুলা লাগালেই হয়ে যাবে sin c plus sin d। সাইন সি প্লাস সাইন ডি, কিন্তু কত বড় হচ্ছে, দ্যাট মিন্স কি বড় হচ্ছে ভ্যালুটা না ছোটই চলে দেখি স্যার আসছে? একটু করে। হ্যাঁ ঠিক আছে, 2 মিনিট দিচ্ছি, তাড়াতাড়ি সলভ করবেন। शायद बड़ा ही आएगा। चलिए चलिए इसे चेक कीजिएगा जरा कितना आ रहा है आंसर। चलिए tan 4x वाला आ रहा है आंसर। 10 हाँ, sir, 4x yes, sir. sir. 10 4x।
কারণ সে উপর থেকে আর নিচে থেকে 4x কমন আসছে করছি স্যার সব করতে গেলে স্যার তাহলে তো ক্লাস এগোবেই না এটা স্যার সহজ ছিল সহজ ছিল বাকি লোক बताएं क्या সলভ करने की जरूरत है সলভ করতে হবে কি করতে No, sir. হবে না সবাই নো বলছেন তো হ্যাঁ স্যার अरे सभी का नो कहना है या कुछ लोग दबाव में कह रहे हैं सर सॉल्व कर दी अरे तो वही तो पूछ रहे ना कि आप दबाव में मत रह जाओ ठीक है ना देखिए क्या करना है मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ इस छोटा वाला एंगल को पहले एक साथ ले लीजिए और बाकी ये छोटा वाला ये जो बाकी जो है एंगल बचा वो एक साथ ले लीजिए तो बस और कुछ बचा क्या मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 इंटू क्या होता है साइन ए प्लस साइन बी या साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या था साइन सी प्लस 2 sin c plus d by 2 एग्जैक्टली cos c minus d by यहाँ 2 पे क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 7x प्लस एक्स बाई 2 यानी 4x यहाँ क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा 7x माइनस एक्स बाई 2 यानी cos 3x यही तो बताओ सर ये है c plus d by 2 तो x 3x 5x 7x ना और अब दो हाँ, तो वैल्यू ठीक है हाँ जी मैंने एक को एक साथ इसको पकड़ा ठीक है और फिर एक साथ हमने किसको पकड़ा sin 3x एंड 5x वाला ठीक है इसको मैंने दो एक साथ पकड़ा इसको मैंने एक साथ पकड़ा तो इन दोनों को जब हम कंसीडर किए तो हमारा क्या आ जा रहा है 2 sin a प्लस बी बाई 2 या c प्लस डी बाई 2 जो भी था c प्लस डी बाई 2 c माइनस डी बाई 2 यानी 7x प्लस एक्स बाई 2 यानी 4x 7x माइनस एक्स बाई 2 यानी 3x समझ में आ रहा है मैम हाँ सर चलिए इसको देखिएगा इस पोर्शन को इसे भी आप ऐसे ही एज्यूम कर सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ कितना आ जा रहा है साइन 5x प्लस 3x बाई 2 कितना 4x ही आ रहा है 4x ही आ रहा है हाँ 4x ही आ रहा है और 5x माइनस 3x बाई 2 यानी कितना आ जा रहा है cos x सर x cos x चलिए डेनोमिनेटर की बात करें यही एज्यूम करना है डेनोमिनेटर में भी कौन सा कि आपका वैल्यूज इसका और इसका कंसीडर कीजिए और इसका और इसका फिर से एक साथ कंसीडर कीजिए तो अब बताओ cos a प्लस cos b का वैल्यू क्या था सर 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2 एग्जैक्टली तो cos 4x हो जाएगा यहाँ पे है ना और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 3x हो जाएगा ठीक यहाँ पे क्या हो जा रहा है 2 cos फिर से cos हो रहा है ना साइन हो रहा है यहाँ पे तो साइन हो जा रहा है ना 3x और 5x वाला क्या करना है हाँ सर साइन पकड़े ना cos पकड़े cos ही पकड़ेंगे 2 cos 4x हो जाएगा यहाँ पे हाँ सर cos 4x का 5x कॉमन प्लस 3x 4x, sir. 5x प्लस 3x बाई 2 यानी 4x अब इसके जगह पे क्या लिखेंगे यहाँ पे क्या कितना लिखा जा सकता है Cos x. 5x माइनस हाँ यानी cos x मैम समझ में आया सर फर्स्ट वाला फॉर्मूला ही सर 2 sin 4x cos 3x ये वाला यही आप नहीं समझे हैं अरे बताओ इसका फॉर्मूला क्या था साइन ऑफ इसको मान लेते हैं c ठीक है इसको मान लेते हैं d सिंपल सी बात है तो साइन ऑफ c प्लस डी बाई 2 था ना 2 इंटू और cos ऑफ c माइनस डी बाई 2 था कि नहीं था बताओ यही था ना फॉर्मूला तो बस वही वाला तो किया अच्छा अब समझ में आया आपको अब देखिए ऊपर क्या कॉमन चला जा रहा है ऊपर चला जा रहा है 2 2 sin साइन 4x. 4x कॉमन ठीक है तो अंदर क्या बच जा रहा है cos 3x प्लस cos x बच जा रहा है चलो ठीक है और नीचे क्या कॉमन चला जा रहा है 2 cos 4x कॉमन चला जा रहा है अंदर क्या बच जा रहा है cos 3x हाँ वही वाला बच जा रहा है ताकि कैंसिल हो जाए है ना वो बच जा रहा है इसीलिए ताकि आप कैंसिल क्या कर सको कैंसिल कर सको तो बस ये 2 2 काट दीजिए कितना आ जा रहा है tan 4x तो आ ही रहा है चलो ठीक है tan sin 4x बाई cos 4x कितना हो जाएगा tan 4x यानी ऑप्शन नंबर सी चलो क्लियर है बताएं यस सर यस सर चलिए अच्छी बात है क्लियर है तो मैम क्लियर हुआ भी आपको बताइएगा जरा बुझते परेशान हेलो आवाज़ आ रही है आप सबको हमारी बोलिए जरा यस सर यू आर ऑडिबल तो मैम से पूछ रहे हैं मैम क्लियर हुआ जो डाउट था अभी थोड़ी देर पहले चलिए आगे बढ़ें विल आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड Yes, sir.
Yes, sir. एक एक चीज़ तोड़ तोड़ कर बता रहे हैं जो कि नेसेसरी नहीं है फिर भी, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि समझ नहीं आ रहा है तो फिर आप पूछ नहीं रहे हो, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर मेरा यहाँ मेहनत वेस्ट हो जाएगा। और आप क्या चाहते हैं, हमारा मेहनत वेस्ट हो जाए हैं? चलो, पता नहीं क्यों हमारा दिल कह रहा है कि इस क्वेश्चन को एज अ होमवर्क दे दिया जाए। क्या बोलते हो? सर इजी है। नहीं सर, टाइम नहीं लगेगा। तो भी सर दे दे। अरे कुछ मीट दीजिए, करके देते हैं अभी। चलिए, अभी कोई करके दिक्कत देते नहीं है ना। चलिए, স্যার এটা दिल আমাদের कह ক্লাস रहा है तो 10 এর बोलो। বইয়ের অঙ্ক। আচ্ছা, এটা ক্লাস 10 এর বইয়ের অঙ্ক। তাহলে কি এটা কি ক্লাস 10 এ আমরা করেছিলাম, এক পেজ লেগেছিল আমাদের, মনে আছে? তো এটা কি এক পেজ স্যার লাগবে নাকি? sin বাই cos अच्छा এখন লাগবে না স্যার, অনেক ফর্মুলা এসে গেছে, ইজি হয়ে গেছে। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, इसको आप अपने मेथड से आप ट्राई करना। मैं बताता हूँ कि 2 स्टेप में कैसे ख़त्म कर देते हैं इसको, ठीक है। चलो, इसे आप होमवर्क के तौर पे ले लें। सर आंसर बता दे, इसका पता है। बता অপশন ডি হবে, ডি হবে। सही जवाब, चलिए अच्छी बात है, ऑप्शन डी हो আমি गया। এখনই বইটা বার করলাম অঙ্কটা দেখবো বলে। বইটা কবে করে ফেলেছি আরে বই দিয়েছি তুই দেখে বলেছিলি? चलिए, बोई बाहर करना हो गया तो आगे बढ़ते हैं, है ना। एक्चुअली बहुत बार क्या है, आंसर एक्चुअली रिमाइंड हो गया इसका। एग्जैक्टली, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग इतने बार देख लेते हैं ना कि একদম मतलब স্যার, একদম। करने की भी सर जरूरत याद हो नहीं जाता होती है। पूरा। चलिए, और याद हो सर जाता है। एक बार सर, आपने अभी बोला ना जो इसका एक वन लाइन फॉर्मूला बता देंगे, हाँ हाँ, वो भी बता दीजिए, दूसरे मैथ में शायद काम में आ जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। वन लाइन की बात करें तो आप थीटा को एज्यूम कर लें, कितना, थीटा को एज्यूम कर लें 45 डिग्री। यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो एम का वैल्यू कितना आ जाएगा, एम का वैल्यू हो जाएगा √3 प्लस 1/√2, ठीक है। और इसकी यदि बात करें एन का वैल्यू, तो एन का वैल्यू कितना आ जा रहा है, স্যার tan 45 1 তো স্যার √3 লিখলেন। ओ सॉरी 1 था तो ना। ये अच्छा अच्छा, सॉरी। तो 1 प्लस √3 हो जा रहा है, राइट। হ্যাঁ স্যার, चलिए 1 + 1/√2 और একটা स्যার 1 - 1/√2। हाँ, और n का वैल्यू हो जा रहा है 1 - 1/√2। अब देखिए सभी जैसे में multiply m कर दो। स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है, सभी में m हाँ, सर। स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है। तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर करना मतलब क्या होता है, m + n × m - n, यही ना, ठीक। तो एक बार करना है क्या, एक बार करना है m + n, यानी कितना आ जा रहा है 2 + 2/√2, यही तो, यही बचेगा। सॉरी, सिर्फ 2 बचेगा ना, m + n करने जाओगे तो सिर्फ 2 बचेगा। हाँ सर, ठीक? একটা 2 और यहाँ पे m और तो - n सब करने 2/√2 जाओगे तो 2/√2, ठीक है। तो अल्टीमेटली दिख Yes, रहा sir. होगा 4/√2 है, ठीक है। हाँ, 4/√2 यानी इसको लिख सकते हैं क्या ऐसे आप 2√2 ही लिख सकते हैं, आई गेस, है ना। क्योंकि आप डेनोमिनेटर में क्या नहीं कर सकते, आप रूट में नहीं छोड़ सकते, तो 2√2 आएगा। अब ध्यान से समझो, हमारा क्या है, mn का यदि हम फॉर्मेट यदि हम निकाल पाएँ तो mn निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 + 1/√2, 1 - 1/√2 को कर दें मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यदि 1 प्लस तो 1 स्क्वायर माइनस हाफ हो जाएगा, यानी हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझो, हमारा यदि वैल्यू आ रहा है 2√2 में, तो यदि 2√2 आ रहा है और यदि हम mn जब तक वैल्यू निकाले हैं आ जा रहा है आपका हाफ, तो क्या 4 × 1/√2 करने से 1/√2 करने से क्या 2√2 आ रहा है, तो हाँ आ रहा है। कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, डी वाला, बस हो गया, ठीक है। तो थीटा एज्यूम करके कर सकते हो। था होमवर्क, आप लोग बहुत चालाक हो, है ना। क्लास वर्क ही सॉल्व करवा लिए, बाहर पब्लिक बाहर। अब हम इतने भी खास नहीं सर। স্যার আমরা বাঙালি স্যার, अच्छा, কখন বাঙালি कुछ भी চালাকি कर করব सकते हैं ধরতে सर। পারবেন না, আমরা কি চালাকি করব আপনি ধরতে পারবেন না। अच्छा, तो आपको बता हाँ दे जी, फॉर सर। ये काइंड इन्फॉर्मेशन, हम भी बंगाल में ना बाय बर्थ हैं, तो फिर सोच लो, फिर हमारा अच्छा, अंदर सर। डेडली कॉम्बिनेशन होता होगा, हाँ सर, हाँ, सर। कॉम्बिनेशन है ना? Exactly. मक्खन कॉम्बिनेशन है सर एकदम। ठीक है। चलिए, मतलब सो ये क्वेश्चन थोड़ा देखो, ये थोड़ा सा ट्रिकी भी बोल सकते हैं, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी बोल सकते हैं। चलो इसको ज़रा देख लेते हैं। अच्छा, इसको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, मैं 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, आप ट्राई करना, नहीं होता है तो हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनेटली नेक्स्ट डे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, इसे पहले नोट डाउन कर लो। cos थीटा इज इक्वल्स टू
a cos phi प्लस b बाय a प्लस b cos phi, कहता है फाइंड tan थीटा স্যার কম্পাউন্ড ডিভিডেন্ড দিলে হয়ে যাবে স্যার এক্স্যাক্টলি কম্পোনেন্ট ও Option ডিভিডেন্ড A করলে তো হয়ে যাবে, হ্যাঁ, স্যার। কিন্তু এখানে বাই একটু ওয়ান বড় আছে হবে তো, স্যার। বাই আছে তো আপনাকে কি করতে হবে, হ্যাঁ স্যার ইনভার্টেন্ডো করতে হবে। ফার্স্ট ইনভার্টেন্ড কত স্যার 1 মাইনাস cos থিটা বাই 1 প্লাস cos থিটা एग्जैक्टली, দিয়ে স্যার tan স্কয়ার থিটা বাই 2 এর ফর্মুলা আসবে। चलिए सही बात है, तो आंसर तो फिर निकल जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, ये है सर। ये आप ट्राई करना, ठीक है। ओके और सर। मैं एक क्वेश्चन ये नोट डाउन कर लिए हैं, यस सर नोट डाउन कीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले স্ক্রিনশট নিয়ে নিচ্ছি স্যার। स्क्रीनशॉट ले लिया अच्छा सर। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी होमवर्क रहेगा। चलो ये दो क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, एक ये वाला एक वो वाला, ठीक है। और आज का क्लास को जो है बस अब मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। इसको कह रहा है इफ़ एन एंगल अल्फा इज डिवाइडेड इनटू टू एंगल्स और टू पार्ट्स ए एंड बी सच दैट ए माइनस बी इक्वल्स टू एक्स है और tan a इज टू tan b का वैल्यू उसने दे रखा है, कहता है कि व्हाट इज sin x इक्वल्स टू, ये उसने क्वेश्चन दिया, दिस इज द क्वेश्चन। কি করে সলভ করতে হবে প্লিজ চেক ইট বাই योरसेल्फ, ऑन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है सर कब होगा? अब नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे मे बी, आज फ्राइडे है ना, सैटरडे होगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं और एक दो क्लास ले लूँगा, ताकि जितना भी टफ क्वेश्चंस वगैरह भी है वो सब भी हम लोग डिस्कस कर लें। वैसे बहुत सारा क्वेश्चन ट्रिकी भी था, आप लोगों ने देखा भी है ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, आप लोग आशा करते हैं कि सॉल्व कर लोगे।